پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے واقعے میں ہم ذکر کرنے والے ہیں یہودی مذہب کی عبادت کا، کہ ان کے یہاں نماز کتنے ٹائم ہوتی ہے اور روزے رکھتے ہیں یا نہیں، اور آخر ان کے یہاں پر اذان کس طرح سے دی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہودی لوگ اپنی اذان میں کیا کہتے ہیں، انہی سب باتوں کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو بہت خوبصورت اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب اس دنیا کے مذہبوں میں سے بہت پرانا مذہب ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے، اور ان طور طریقوں کو یہودیوں میں خاص مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادت اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں جانیں گے، جو واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب روز 3 عبادت ان کے یہاں پر فکس ہیں۔ جیسے اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی یہودیوں میں روز 3 وقت کی عبادت ہے، جس میں صبح، دوپہر اور شام ضروری ہے، اور لوگوں پر یہ واجب کی جاتی ہے۔ یہودی مذہب میں کچھ حکم اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب انسان اس کو روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے حکم اس پر واجب یعنی لاگو ہو جاتے ہیں، اور انسان جب مکمل طور سے ان کو نہیں پڑھتا تو پھر کوئی بات نہیں۔ پیارے دوستو، ان کے یہاں جماعت کا رواج بھی ہے، لیکن ان میں سے کچھ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا زیادہ افضل مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جماعت کی شکل میں قوم ہونے کی حیثیت سے خدا کو پکارتے ہیں اور ایک جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کے یہاں پر نماز کے لیے 10 لوگوں کا حاضر ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں سب سے پہلی عبادت صبح کے وقت جب دن شروع ہوتا ہے اس وقت ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور سب سے خاص عبادت ہے۔ اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں یہودی علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، اور جو اس عبادت کا سب سے خاص حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے ایک ہونے کی گواہی دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیحا کے آنے کی دعا کی جاتی ہے۔ مسیحا یعنی جسے اسلام میں دجال کہا جاتا ہے، اور جو زبور پھر پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی نماز کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہودی دن میں 3 بار نماز پڑھتے ہیں، اور سنیچر کے دن اور باقی تمام خاص دنوں میں یہودی ایک نماز پڑھتے ہیں، جس میں سے موصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں 5ویں نماز بھی ہے، جسے نائلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف تیسرے مہینے کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی اکیلے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح یہودی مذہب میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو افضل کہا گیا ہے، یہاں تک کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیوں کی نماز میں قرات بلند آواز سے اور الگ انداز میں کی جاتی ہے، جسے غن کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک اونچا چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ قرات پڑھتے ہیں، جنہیں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اذان دیتے وقت یہودی عالم کے ہاتھ میں ایک بانسری سی ہوتی ہے، جسے بجا کر وہ آس پاس کے یہودیوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، اور اس بانسری کی آواز سنتے ہی سارے یہودی عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔
प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को जमा करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों के तरीक़े यहूदियों वाले मशवरे दिए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े को अपनाने से ही मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी ये तीनों ही इब्राहीमी मज़हब को मानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह यहूदी भी अपनी इबादत गाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यहूदियों की नमाज मुसलमानों की नमाज से बिल्कुल अलग है। यहूदी सबसे पहले नमाज की नियत बांधते हैं और नियत बांधने के बाद खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये सजदे में जाते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं और दोबारा से खड़े होकर एक बार फिर वापस सजदा करते हैं। इसके बाद ये ज़मीन पर लेट जाते हैं, कभी ज़ोर ज़ोर से खुदा को पुकारते हैं तो कभी ज़ोर ज़ोर से खड़े होकर ही झूमने लगते हैं। पूरी नमाज के बीच में इनका रुख यानी इनका मुंह यरूशलेम की तरफ ही होता है। प्यारे दोस्तों, इनके यहाँ रोज़े का तस्वुर भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद पाया जाता है। यहूदी मज़हब में 2 रोज़े फ़र्ज़ हैं, जिनमें यौम कफ़ारा और तस्मा का रोज़ा भी शामिल है। ये रोज़ा सूरज डूबने से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका टाइम तकरीबन 25 घंटे है। यहूदियों के रोज़े में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन या तेल या परफ्यूम लगाने और बीवी से हम बिस्तरी करने की मनाही होती है। यहूदी मज़हब में इसके अलावा 4 रोज़े हैं जो सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक माने जाते हैं। यहूदी दूल्हा दुल्हन पाकीज़गी के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने के लिए अपने शादी के दिन भी रोज़ा रखते हैं, जबकि परहेज़गार यहूदी जुमेरात और सोमवार को रोज़ा रखते हैं। इनका अक़ीदा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमेरात को कोहे तूर पर गए और पूरे 40 दिन बाद सोमवार को वापस आए। प्यारे दोस्तों, इनका मानना है कि कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन भूखे प्यासे रहे थे। चुनाचे आमतौर पर यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोज़ा रखना अच्छा मानते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोज़ा उन पर फ़र्ज़ है जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को होता है। इसे अशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात के 10 अहकाम मिले, इसलिए तौरात में रोज़ा रखने को सख्ती से कहा गया है। इनके यहाँ रोज़े का मकसद अल्लाह को राज़ी करना और अपने बुरे ख्याल को अपने बस में यानी कंट्रोल में रखना भी है। प्यारे दोस्तों, यहूदी मज़हब में शेवत के त्योहार को भी ख़ास अहमियत हासिल है। ये एक जरी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इसे दूसरे यहूदी त्योहारों की भरपूर तरीके से मनाते हैं। तो इस मौके पर घरों को फूलों से सजाते हैं। ये त्यौहार बैसाख के 50 दिनों के बाद मई और जून के 6ठे और 7वें रोज़ मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार एक तरह से गेहूं की फसल के आने का ऐलान होता है। शेवत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदी मज़हब में ईदों का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदी मज़हब की ईद पुरीन के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पुरीन की मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। इस मिठाई को दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के घरों में तोहफों के तौर पर भेजा जाता है, गरीबों में बांटा जाता है। ईद के मौके पर गरीब घरानों में एक ख़ास किस्म का सदका भी दिया जाता है। इस ईद के मौके पर एक ख़ास पकवान हर घर में चूल्हे पर चढ़ा हुआ नज़र आता है और ख़ानदान के सारे लोग जमा होकर इस पकवान का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी मज़हब की रस्मों में से एक बड़ी रस्म उनका अज़ान कहना भी है। प्यारे दोस्तों, यहूदी मज़हब के लोग आखिर अज़ान कैसे कहते हैं और उनकी अज़ान का तरीक़ा क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी मज़हब के लोगों में अज़ान का मामला क्या है। अज़ान में ये कहते हैं, जब एक बांसुरी सी उनके हाथ में होती है जिसके अंदर वो कुछ अल्फाज ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, जिसे सुनकर सारे यहूदी नमाज के लिए जमा होते हैं, तो आखिर अपनी अज़ान में क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं, सुनो इसराइलियो। इस लफ्ज़ को वो कई बार पुकारते हैं। फिर उसके बाद में हैशम ही हमारा खुदा है, इसको पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कहते हैं, हैशेम ही एक है और अकेला है, इसको भी कई बार पुकारते हैं। और फिर कहते हैं, हैशेम ही खुदा है। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ अपनी अज़ान को ख़त्म करते हैं। प्यारे दोस्तों,
उम्मीद है वाक़या आपको पसंद आया होगा और आपको मालूम हो गया होगा कि यहूदी लोग किस तरह से अजान पढ़ते हैं और अपनी अजान में क्या कहते हैं। उम्मीद है प्यारे दोस्तों ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला हर वाक़या और हर जानकारी सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं किसी अगले वाक़ये के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।